my root is Jesus. मेरा जड़ जहाँ से मैं जड़ पकड़ा हूँ वो जीसस है. तो आई शुड फोकस माई अटेंशन ओनली ऑन जीसस. से बाकी का जो है ना, दैट इज ऑल वैनिटी. उसमें कुछ दम नहीं है. तो फोकस योर आइज ऑन द लाइफ गिवर एंड स्टे काम एंड स्टे फेथफुल टू हिम. और एक चीज बोलना चाहती हूँ. एक्चुअली ये बहुत अच्छा टॉपिक है. एक्चुअली मैं अंदर से लड़ रही थी अपने आप से, किससे कहूँ. मैं खुदा से बोला है, खुदा मेरा फेथ हिल रहा है. आज मैं खुला बोलती हूँ. एंड सब होने के बाद मेरे लिए प्रेयर करिए सब लोग. ये सब देखते हुए ना मेरा फेथ भी शेकन हो गया है. एंड आई नो दैट समवेयर टू द हायर लेवल में पहुंच रही हूँ. आई नो इन माई स्पिरिट. मैं बहुत कैजुअल हो गई हूँ, बहुत कैजुअल हो गई हूँ. लेंट सीजन में सब लोग सब कर रहे तो मैं कूल हूँ. अब ये सब देखते हुए, ये सब जो भी अभी पास्टर आपने बोले ना, all this saying ना, I thought what is this when people can do this, we are more purer, why should we follow. ये भी एक है, ये भी एक शैतान का एक तंत्र रहेगा. I am going through this process now. और ये चीजों में मैं गुजर रही हूँ, ये टेस्ट. तो I know that I will pass through the test. I've seen tests 6 महीने का, 1 महीने का, बहुत लंबा लंबा भी टेस्ट देखी हूँ. and I've gone through that out. खुदा मुझे लेकर आया है. बट मेरा प्रार्थना वही है, खुदा मेरा फेथ किधर तो शेक हो रहा है, मुझे गिरने मत देना, मुझे हायर लेवल पे लेकर जा. ये मैं नहीं जानती, अभी फिलहाल मैं समझ नहीं पा रही हूँ किसमें गुजर रही हूँ. ये सब चीजें देखते हुए ये एक कंक्लूजन है. वेरी कैजुअल हो गई हूँ. डोंट मेक मी दैट कैजुअल करके मेरा प्रेयर है मेरे लिए. प्लीज सब लोग प्रेयर करिए. You got me, no brother, what I'm trying to tell. Yes. I pray. मैं प्रेयर करती हूँ. I see Syria. I've been continuously day and night I pray. But वो सब देखते हुए, ये सब इधर का खुशहाली देखते हुए, there is a confusion, there are disturbances, हर चीज ऐसा. and खुदा कुछ भी नहीं बात कर रहा. He is constant like that. I'm telling, speak Lord, speak, teach me. मैं खुद बेर नहीं कर पाऊंगी क्या. so many things are there what God is going to speak to me now. So uplift me in here for these things. Definitely. ये भी एक process रहता है, brother. Is that anything like that in the walk? See, there are things that we get exposed to. It's not a process. The process has begun a long time ago. But in the walk with God, क्या होता है, when we are walking with the God, परमेश्वर भी कुछ ऐसी चीजें हमको दिखाता है. एक समझना जरूरी है, कुछ ऐसी चीजें हमको दिखाता है जिससे कि हम लोग परमेश्वर के और करीब आ सके. क्या होता है, जब हम लोग गलतियों को देखेंगे तो फिर एक बार मराठी में एक सेइंग है कि पुढच्याला ठेच लागली तर मागचा चाना होतोय. So when somebody has stumbled, we must prepare ourselves. We must warn ourselves. Yeah, there is a problem. I should not stumble there. So God will show us certain things in advance so that our walk with the Lord becomes much easier. But if we focus too much on those things, then there are chances that we will allow some kind of a bitterness to take place in our hearts. That we should be mindful of and careful of. हम लोगों को वो नहीं करना है. देखना है, सीखना है, उन चीजों को वहीं पे रखना है, आगे बढ़ना है. वो अगर हम लोग साथ में लेकर चलेंगे तो फिर कड़वाहट जो है वो ज्यादा तैयार हो जाती है. And that is where the chances are that somebody may fall. है ना. तो हम लोगों को उतना केयरफुल रहना है कि we don't carry that burden. वो देखा है, परमेश्वर ने दिखाया है. Thank you Lord for showing me this, and I will make sure that I don't fall in that trap. I don't fall in these wrong things. I will continue my walk with you, because that is where our focus is. Yes. Jesus, looking at Christ. Yes. You know, that is how we survive, not with the people. लोग तो है, we cannot. The best example is always follow
to follow Jesus. After that is Paul. And when we look at them and all the 12 disciples except Judas Iscariot, we have so many things. Open the Bible, read from Hebrew. We have all the spiritual heroes. तो उन्होंने जो किया है वो जब हम लोग देखेंगे और जब हमारा फोकस वहां पे रहेगा, then the walk with the Lord will become not only easy but a journey that is full of joy, peace and happiness, as the word of God promises. So let's open our Bibles. Let's go to Colossians. Colossians chapter 3 and verse 23 से आगे पढ़ेंगे. कुलुसियों की किताब 3 अध्याय 23 से लेकर आगे अंत तक 25वें वचन तक. Brother Wilson, could you please read that in English for us? First Colossians 3 verse. Colossians chapter 3 verse 23 onwards, brother. Yeah. And whatever you do, do it heartily, as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. For you serve the Lord Christ. But he who does wrong will be repaid for what he has done, and there is no partiality. Amen. Amen. हिंदी में कोई पढ़ेगा प्लीज इसे. असली वचन किससे बताएंगे? कुलुसियों की किताब या और उसका 23 से लेकर आगे. 1 का 23 से नहीं, चैप्टर 3 कुलुसियों की किताब 3 अध्याय 23 से लेकर 25 तक. ओके. जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी. तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा. वहां किसी का पक्षपात नहीं. Amen. तो जो कुछ भी हम लोग करते हैं वो कह रहे हैं कि प्रभु के लिए करो और पूरे मन से करो, और मनुष्य के लिए नहीं, लेकिन जो कर रहे हैं वो प्रभु के लिए करना है. So the ministry that we have been called to is to serve both God and men. लेकिन जो भी कर रहे हैं वो करना है प्रभु के लिए. और जब वो हमारा विचार होगा तो वो मनुष्य तक जब जाकर पहुंचेगा तो वो बिल्कुल पवित्र होगा. इट विल नॉट बी कंटैमिनेटेड. उसमें और कुछ जुड़ नहीं जाएगा, क्योंकि जो हम लोग दे रहे हैं प्रभु को उसमें वो लोगों तक पहुंच रहा है. तो अभी आत्मिक बातें जब हम लोग लोगों के साथ शेयर करते हैं, परमेश्वर को जब लोगों के पास मतलब लोगों के बीच में जाकर जब प्रचार करते हैं परमेश्वर के बारे में, उसके राज्य के बारे में, वो पूरा मन लगाकर जब हम लोग करते हैं तो पवित्रता के साथ यीशु मसीह के लिए करते हैं, तो वो उतनी ही पवित्रता के साथ लोगों तक पहुंचता है. लेकिन अगर हम लोग उसमें बाकी की चीजों की मिलावट करके
जब लोगों को देने की कोशिश करेंगे तो उसमें क्या होता है कि कंपनी जो है वो पैकिंग बड़ा अच्छा करती है, अंदर जो माल घुसेड़ा है ना वो जो आम तौर पे बाजार में मिलता है वही है, लेकिन पैकिंग जो है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। कुछ चीजें जब हम लोग ऐसा कर देते हैं तो फिर उसमें प्रभु की महिमा नहीं होती है, और फिर प्रभु कहते हैं कि जो लोग गलत करेंगे उसके अनुसार उनको उसका जवाब भी दिया जाएगा, और यहाँ पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए बात समझना जरूरी है। जो जब हम लोग कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, वो पूरा मन लगाकर और पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के हवाले करते हुए करना है ताकि उसकी महिमा हो। तो ये एक सिंपल सीधा सादा जवाब है। जब सेवकाई में हम लोग कुछ करते हैं तो किस जिम्मेदारी के साथ करना है। जो भी कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं, डूइंग अनटू द लॉर्ड, प्रभु में कर रहे हैं, वरना कुछ फायदा नहीं है। फिलिपियों की किताब खोलते हैं, फिलिपियों का 4था अध्याय और उसके पहले 5 वचन पढ़ लेते हैं। और वर्स 5 पास्टर। फिलिपियों की किताब 4था अध्याय पहले 5 वचन, 1 से लेकर 5। 1 से लेकर 5 जी। Therefore, my beloved and longed for brethren, my joy and crown, so stand fast in the Lord, beloved. I implore Euodia and I implore Syntyche to be of the same mind in the Lord. And I urge you also, true companion, help this woman who labored with me in the gospel, with Clement also, and the rest of my fellow workers whose names are written in the book of life. Rejoice in the Lord always, and again I will say rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Amen. Amen. क्या कह रहा है यहाँ पर पौलुस? पौलुस कह रहे हैं कि बहुत कष्ट उठाने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मदद करने के लिए, जिनकी सहायता करने के लिए पौलुस को लिखना पड़ रहा है कि ये सब लोग मेरे साथ काम कर चुके हैं और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको मदद की जरूरत है, तो आप प्लीज उनकी मदद कीजिएगा। और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम वो कहते हैं कि जीवन की किताब में छप चुका है, लिख गया है, और वो कहते हैं कि रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। और आपकी जो विनम्रता है वो सब लोगों की नजर में आए, इतना नम्र होना है कि एवरीबडी विल नो, एवरीबडी शुड नो। ये चीजें छिपेगी नहीं। 6वां वचन पढ़ लीजिए, वर्स 6। Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Amen. Verse 7, brother. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and mind through Christ Jesus. Amen. 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 So, as a child of God, we must focus on Christ. Be careful for nothing.
But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. अगर हम लोग अपने दिमाग को, अपने हृदय को कहीं भटकने ही नहीं देंगे, तो फिर हम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. बिकॉज द सेम गॉड, जो परमेश्वर, जिस परमेश्वर की सेवा हम लोग कर रहे हैं, जिस यीशु मसीह की सेवा हम लोग कर रहे हैं, he also has given us authority to control our thoughts. वो कहता है कि I'll bring every thought under control in Christ Jesus. सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं मैं. पूरा जो हमारा सोच विचार जो भी है, we can bring all that under submission. हमें सबमिट कर देगा वो. But if we allow our mind to freak out, then nobody can save us. So don't allow that portion, spirit, soul and body. Don't allow that soul to dominate your spirit. Always control your soul. Let your spirit man continue to grow stronger and stronger each day as we walk with the Lord. प्रतिदिन हमें अपने स्पिरिट मैन को, आत्मिक जो हमारा एक पहचान है, इंसान है, जो हमारा आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको स्ट्रांग बनाना है. और अगर हम लोग उसमें स्ट्रांग बने रहेंगे, देन ये सब नहीं होगा. दैट इज व्हाई जीसस हैज गिवन अस पैराबल्स. उसमें से एक है, जब वो व्यक्ति जो है बीज बोने के लिए निकल पड़ता है, तो कुछ बीज है जो अच्छी जमीन पर गिरे हैं, जहां पे वो मर गए और फसल जो है अच्छी आई. कुछ है जो उबड़ खाबड़ में गिर गया, कुछ ऐसे हैं जो पथरीले जमीन में गिर गए. तो वो जब पथरीले जमीन पर गिरता है, then the cares of the world, इस दुनिया में जितने चीजें हैं, उन चीजों की वजह से वो बीज जो है वो फल तो गया, जर्मिनेट भी हो गया, उसमें से कुछ अंकुरित भी हो गए, बाहर भी आए. लेकिन क्योंकि दुनिया की जो धूप है, दुनिया के जो चीजें हैं, रोजमर्रा के अपने जीवन के साथ जुड़ी हुई, वो उस पर हावी हो जाती है और वो मर जाता है. तो हमें इस बात का ध्यान रखना है. इवन दो वी आर बिलीवर्स, इवन दो वी आर मिनिस्टर्स, हम लोगों को ये देखना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के वचन के लिए जो भूमि मेरे हृदय में है, वो हमेशा मैं तैयार रखता हूँ. उसे मैं तैयार रखता हूँ, उसकी देखभाल करता हूँ, ताकि जब भी बीज बोया जाएगा वो सही भूमि मेरी तैयार हो, जहां पे वो जमीन में बीज आएगा, जिसे जर्मिनेट होने का समय मिलेगा, उसमें से पौधे तैयार होंगे और उससे अच्छे फल भी आएंगे. तो ये प्रतिदिन की बात है. हर दिन हम लोगों को अपने हृदय को साफ करना जरूरी है. वी हैव टू मेक श्योर दैट माय हार्ट इज टेंडर इनफ. जो जमीन है मेरे मन की, वो तैयार है परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के बीज को स्वीकार करके उसमें से फल ले आने के लिए. एक साल में एक बार का नहीं है. इट्स नॉट दैट आई सो सीड, आई वेट फॉर 4 months, देन माय हार्वेस्ट कम्स, देन आई टेक अनदर हार्वेस्ट, नया बीज बोएंगे. ऐसा नहीं है. एवरी डे वी हैव टू दिस, बिकॉज वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड. वी आर इन दिस वर्ल्ड बट वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड. और जो हमारा स्पिरिचुअल रिल्म है, उस स्पिरिचुअल रिल्म में बने रहने के लिए आई हैव टू make every effort every day. We don't live on past glory. We live every day in that glory. उसी में बढ़ना है, उसी में चलना है.
उसमें बने रहना बहुत जरूरी है। वी डोंट लिव ऑन पास्ट ग्लोरीज। एक समय ऐसा था जब मैं अच्छा था, एक समय ऐसा था जब मैं बहुत स्ट्रांग था, एक समय ऐसा था जब मेरी सेवकाई बहुत अच्छी चल रही थी ना। आई डोंट लिव इन दैट, आई लिव इन द प्रेजेंट। आज क्या है वो बहुत मायने रखता है, बहुत जरूरी है। तो उसमें स्ट्रांग होते जाना चाहिए, ये हम लोगों को सीखना है, समझना है, ये बहुत जरूरी है। ओके, चलिए अब इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों का जो विषय था उस पर आएंगे। अगर फिर भी कोई सवाल है तो जरूर पूछेगा इसमें, और परमेश्वर का जो वचन हमारी अगुवाई करता है उसमें से हम लोग कुछ देखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, और ताकि और मजबूत बन जाए आत्मिक रूप में। तो कल जिस विषय के बारे में चर्चा की थी उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं, और ये देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने आप को तैयार कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है आज के दिन में। तो निर्गमन की किताब कल शायद हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो 31वां अध्याय और उसके पहले 6 वचन, 1 से लेकर 6 तक। एक्सोडस चैप्टर 31 वर्सेस 1 to 6। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। बस 6 भी। हाँ, 6 भी। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलीआब को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान है उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनाए। Then the Lord spoke to Moses, saying, See, I have called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, and I have filled him with the Spirit of God in wisdom, in understanding, in knowledge, and in all manner of workmanship, to design artistic works, to work in gold, in silver, in bronze, in cutting jewels for setting, in carving wood, and to work in all manner of workmanship. And I indeed have appointed him with him Aholib, the son of Ahisamach of the tribe of Dan, and I have put wisdom in the hearts of all the gifted artisans, that they may make all that I have commanded you. Amen. तो परमेश्वर है जहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये अभिषेक मिलता है। जिन शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है बहुत ही हम लोग देखते हैं कि बारीकी से इन सब चीजों का अध्ययन करके लिखा गया है, ऐसा ही नहीं लिखा हुआ है। तो
परमेश्वर यहाँ कहता है, आई हैव कॉल्ड बाय नेम Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah. And I have filled him with the Spirit of God. And then he bifurcates. एक के बाद एक लिस्ट बनाते हैं. What all are the things that I have given him through my anointing, through my Spirit? Wisdom, understanding, knowledge, and workmanship. ये 4 चीजें उसको दी गई है. इब्रानी की किताब में थोड़ा सा हम लोग देखें जाकर, पौलुस क्या लिखते हैं. यहां पर 4 चीजें हमको दिखाई दे रही है जो परमेश्वर ने बेजालिल को दी. और नई वाचा में 6 चीजें हैं जो हर एक विश्वासी में होनी चाहिए. इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया है, यूट्यूब पे डाला हुआ है. आप इसके बारे में थोड़ा ज्यादा समझना चाहते हैं तो वीडियोस जरूर देखिएगा. 6 चीजें हैं जो विश्वासी में होना चाहिए, चाहे जितना भी जवान विश्वासी क्यों ना हो, नया विश्वासी क्यों ना हो. तो ये 6 चीजें जो है वो उसे परिपक्वता की ओर ले जा सकती है. तो पहली है, इब्रानी की किताब खोलेंगे 6 अध्याय और उसके पहले 2 वचन पढ़ लेते हैं. हिब्रू चैप्टर 6 वर्सेस 1 and 2. Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith towards God, of the doctrine of baptism, of laying on of hands, of resurrection of the dead, and of eternal judgment. हिंदी में पढ़े. जी, हिंदी में पढ़ ली. इसलिए आओ जी, 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 मसीह हिंदी में की पढ़. शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें. आमेन. तो यहाँ पे जो पौलुस कह रहे हैं, ये 6 चीजें जो है वो हमेशा हमें अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए. These are the 6 things everybody should be firm as a believer about repentance, about faith in God, about instructions about baptisms. It is not a baptism, it is a plural, baptisms, the laying on of hands, and the resurrection of the dead, and eternal judgment. तो ये सारी चीजें जो है बारीकी से हमें पता होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए, so that we will have no questions about this. Says lay aside, इसके बारे में और चर्चा नहीं करनी है. I don't want to discuss again and again. क्यों? Because these are the basic things. तो उसके बाद हम लोग मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं. These are the basic things. तो यहाँ पे जो आज हम लोग देख रहे हैं, the laying on of hands, उनमें से एक है और जो हमें ये बताता है, जो हमेशा से मीटिंग्स में कहीं ना कहीं होता रहेगा, कलीसियाओं की जो सर्विसेज है वहां पर होता रहेगा, और आपको
इसके बारे में और जानकारी मिलती जाएगी, ताकि आपका जो एक नींव डाला गया है विश्वास का, वो और मजबूत होता जाए। दैट इज व्हाई इट इज नीडेड। मजबूत होने के लिए ये एक शो नहीं है, एक लोगों को दिखाने के लिए करने वाली बात नहीं है। इट इज नॉट फॉर मी टू वेट फॉर दैट पर्सन टू फॉल। मेरा जो विचार है वो ये है कि व्हेन आई डू दिस, द मैन फॉर होम आई एम प्रेइंग, इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जिस व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जिस व्यक्ति के सर पर मैं हाथ रखकर प्रार्थना कर रहा हूं, उसे परिपक्वता मिले, वो और मजबूत होता जाए, उसे ये 4 क्वालिटीज मिले। कौन सी? जिसके बारे में हम लोगों ने निर्गमन की, एक्सोडस की किताब में देखा। I have filled him with the Spirit of God, नंबर 1। नंबर 2, विजडम। नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग। नंबर 4, नॉलेज। और नंबर 5, वर्कमैनशिप। So when I have the Spirit of God, all these characteristics, all these qualities will be found in me automatically. आज की तारीख में ये क्या मायने रखता है? ये आज की तारीख में बहुत मायने रखता है। Because I need everything. I need all these characteristics and I need to receive them. ये सारी चीजें मुझ में होना जरूरी है। I need to be more creative. सर, ये जो मुर्दे से काम बता रहे, तो ये सारे संसार के बुरे काम है। मूर्ति पूजा हो गया और अनेक प्रकार के काम है, जैसे हम कुछ ऐसे काम करते हैं दिखावा के लिए, वो सब मूर्ति पूजा में आएगा सर? जी 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 जी। ये जो मरते काम, मरे हुए काम, मरे हुए काम। जी जी जी। ओके, थैंक यू सर। तो आज इस विषय को देखेंगे कि जो हम लोग प्रार्थना करते हैं किसी के ऊपर हाथ रखकर, या कोई भी करता है, क्या है वो? तो इसका ये है, आत्मिक मुख्य कारण ये है उसके पीछे का, कि आत्मिक रीति से उसकी उन्नति हो। जब हाथ रखकर किसी के लिए प्रार्थना की जाती है तो एक सेवा है दूसरे व्यक्ति के लिए, और एक व्यक्ति यही चाहत के साथ करता है कि इस व्यक्ति के डेफिनेट स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, डेफिनेट। और जिस व्यक्ति के लिए किया जा रहा है उसके लिए प्रार्थना की जाती है। कभी कभार हम लोग देखते हैं कि कुछ ग्रुप होता है बिलीवर्स का कलीसिया में, जिन लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है। अगर बहुत बड़ी कलीसिया है तो उसमें ग्रुप्स बनाए जाते हैं और ये लोग आकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। और सब लोग प्रार्थना करते हैं।
तो ये सब आया कहां से? इंपॉर्टेंट बात ये समझना जरूरी है, इसका उगम कहां से हुआ? क्या ये बाइबल से है भी या नहीं है, और है तो कहां से है? तो जब प्रार्थना की जाती है इस तरह से, लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स, ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, सदियों पुरानी बात है, लोगों को आशीषित करने के लिए, परमेश्वर के लोगों को आशीषित करने के लिए। बराबर। और इसके रिकॉर्ड्स हमें बहुत पुराने दिनों को याद दिलाते हैं। तो होता क्या है, ये जब आया इस तरह से, तो होता क्या है, हुआ क्या है? तो पुरानी वाचा में इजराइल के लोग जब हाथ रखकर प्रार्थना करते थे तो क्या होता था, क्यों करते थे, किसके लिए करते थे? तो पहली बात है, वो पशुओं के लिए करते थे। पुराने वाचा में पशुओं के सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की जाती थी, उनका बलि चढ़ाने के लिए, ताकि जो पाप है इजराइल का वो सब उनके माथे पर थोपा जाए, उन्हें बलि चढ़ाने के पहले या उन्हें छोड़ने के पहले। तो फिर एक बार वापस चलते हैं निर्गमन की किताब की तरफ, एक्सोडस चैप्टर 29 वर्स 10। निर्गमन की किताब 29वां अध्याय 10वां वचन। You shall also have the bull brought before the tabernacle of meeting, and Aaron and his son shall put the hands on the head of the bull. तब बछड़े Amen. को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप ले आना, हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने अपने हाथ रखें। जी, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 15वां वचन पढ़ लीजिएगा प्लीज। फिर एक मेढ़ा लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखें। And you shall also take one ram, and Aaron and his son shall put the hands on the head of the ram. Amen. एक मिनट, कैन वी कंटिन्यू? ओके, 19वां वचन 19। फिर दूसरे मेढ़े को लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखें। And you shall also take the other ram, and Aaron and his son shall put the hands on the head of the ram. तो ये बहुत पुरानी बात है, जब किसी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की जाती थी। इसका मतलब मैं बताता हूं आपको। इसका मतलब है सेपरेशन अनटू डेथ। बहुत गंभीर विषय है, नॉट इजी। ये ठट्टा मजाक उड़ाने की बात नहीं है, इट्स नॉट इजी। जब किसी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की जा रही है, क्या हो रहा है? बीन सेपरेटेड अनटू डेथ। लेविटिकस की किताब खोलते हैं, लैव व्यवस्था, उसका पहला अध्याय 1 से 5 तक पढ़ लेते हैं। यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में से उससे कहा, इस्राएलियों से कह
कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैलों अथवा भेड़ बकरियों में से एक का हो। यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। वह अपना हाथ होमबलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक है वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। Now the Lord called to Moses and spoke to him from the tabernacle of meeting, saying, Speak to the children of Israel and say to them, When any one of you bring an offering to the Lord, you shall bring your offering of the livestock, of the herd and of the flock. If his offering is a burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish. He shall offer it on his own free will at the door of the tabernacle of meeting before the Lord. Then he shall put his hand on the head of the burnt offering, and it will be accepted on his behalf to make atonement for him. He shall kill the bull before the Lord, and the priest Aaron's sons shall bring the blood and sprinkle the blood all around on the altar that is by the door of the tabernacle of meeting. Amen. थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, चौथा अध्याय 15 वचन, चैप्टर 4 वर्स 15, लेविटिकस। And the elders of the congregation shall lay their hands on the head of the bull before the Lord. Then the bull shall be killed before the Lord. और मंडली के वृद्ध लोग अपने अपने हाथों को यहोवा के आगे बछड़े के सिर पर रखें और वह बछड़ा यहोवा के सामने बलि किया जाए। जी, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 8वां अध्याय उसका चौथा वचन, चैप्टर 8 वर्स 4। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा हुई। And he brought the bull for the sin offering. Then Aaron and his sons laid the hands on the head of the bull for the sin offering. Brother, chapter 8 verse 4, Leviticus. So Moses did as the Lord commanded him, and the congregation was gathered together at the door of the tabernacle of meeting. Amen. Amen. थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, चैप्टर 8 में ही 18वां वर्ष पढ़ते हैं। फिर वह होमबलि 18 के मेढ़े को समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। Then he brought the ram as the burnt offering, and Aaron and his sons laid their hands on the head of the ram. Amen. Verse 22. फिर वह दूसरे मेढ़े को जो संस्कार का मेढ़ा था समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। And he brought the second ram, the ram of consecration. Then Aaron and his son laid the hands on the head of the ram. Okay. Let's go a little further. Chapter 16 verse 21. Leviticus chapter 16 verse 21. और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। Aaron shall lay both his hands on the heads of the livestock goat
confessed over it all the iniquities of the children of Israel and all their transgressions concerning all their sins, putting them on the head of the goat, and shall send it away into the wilderness by the hand of a suitable man. Amen. तो ये सब जो हम लोग देख रहे हैं, ये लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स, हाथ रखकर प्रार्थना करने का एक जो तरीका दिया गया है, उसमें एक ये भी है कि अपने सारे पाप किसी और पर थोप सकते हैं. We have to be very careful. इसमें जो तरीके दिए गए हैं, उस तरीकों को देखना जरूरी है, समझना जरूरी है. पौलुस एक जगह लिखते हैं कि हाथ रखकर प्रार्थना करने में जल्दबाजी मत करो. जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जा रही है, ये भी देखना जरूरी है कि वो व्यक्ति आपके प्रार्थना के योग्य है भी या नहीं है. मतलब परमेश्वर के योग्य है या नहीं है. हर किसी पर हाथ रखकर प्रार्थना करने की जल्दबाजी नहीं करनी. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 24वां अध्याय उसका 14वां वचन देखते हैं. लेविटिकस में ही है हम लोग. थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 24:14. तुम लोग Take outside the camp him who has cursed, and let all who heard him lay their hands on his head, and let all the congregation stone him. तुम लोगों उस शाप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाओ, और जितनों ने वह निंदा सुनी हो वे सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर टेके, तब सारी मंडली के लोग उस पर पथराव करें. तो जो हम लोग देख रहे हैं वो है, पहली बात समझना जरूरी है कि पुरानी वाचा में जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया गया था वो है सेपरेशन अनटू डेथ, मरने के लिए. थोड़ा सा आगे बढ़ते, गिनती की किताब खोलते हैं, नंबर्स चैप्टर 8 वर्स 12. तब लेविया अपने अपने हाथ उन बछड़ों के सिरों पर रखे, और तू लेवियों के लिए प्रायश्चित करने को एक बछड़ा पाप बलि और दूसरा होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाना. Then the Levites shall lay their hands on the heads of the young bulls, and you shall offer one as a sin offering, and the other as a burnt offering to the Lord, to make atonement for the Levites. और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इतिहास की दूसरी किताब खोलते हैं. दूसरी इतिहास की किताब उसका 29वां अध्याय उसका 23वां वचन. 2 Chronicles चैप्टर 29 वर्स 23. दूसरी इतिहास का क्या बोले सर? दूसरी इतिहास की किताब उसका 29वां अध्याय उसका 23वां वचन. जी ओके, थैंक यू. तब वे पाप बलि के बकरों को राजा और मंडली के समीप ले आए और उन पर अपने अपने हाथ रखे. Then they brought out the male goats for the sin offering before the king and the assembly, and they laid their hands on them. Amen. तो ये जो टॉपिक है जो हम लोग देख रहे हैं, लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स, तो इसमें जो याजक है उनसे कहा गया था कि आपने
अपने हाथ उस पशु के माथे पर रखना है, सर पे रखना है, जिसे बलि चढ़ाने के लिए चुन लिया गया है, ताकि आपके सब जो पाप है उसके माथे चढ़ा दिए जाएं और आपको अपने पापों से उस वक्त जो है वो किनारा करने का एक मार्ग जो है वो खोला जाए। तो अब जो हम लोग देखेंगे वो है इम्पार्टेशन, एक आशीष प्राप्त करने के लिए या किसी को आशीषित करने के लिए लोगों के सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कैसे की जा सकती है। तो हम लोग देखते हैं कि याकूब जो है उसने उसका जो पोता था इफ्राइम और मनश्शे, उनके सर के ऊपर हाथ रखकर उनको कैसे आशीषित किया। तो उत्पत्ति की किताब खुलते हैं 48वां अध्याय उसका 14वां वचन देते हैं, जेनेसिस चैप्टर 48 वर्स 14। का 14 48 का 14, 48 48। Then Israel stretched out his right hand and laid it on Ephraim's head, who was the younger, and his left hand on Manasseh's head, guiding his hand knowingly, for Manasseh was the firstborn. तब इस्राएल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रैम के सिर पर जो छोटा था और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया। उसने जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनश्शे ही था। आमीन। उसका अगला वचन बहुत सुंदर है, उसको जरा पढ़ लीजिएगा, 15वां वचन। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। आमीन। And he blessed Joseph and said, God, before whom my father Abraham and Isaac walked, the God who has fed me all my life along to this day. Amen. So the blessing, जब ब्लेसिंग की बात आती है, इम्पार्टिंग ब्लेसिंग्स, तो उसका इस्तेमाल पुरानी वाचा में इस तरह से भी किया गया, किसी के सर पर हाथ रखो और उसको आशीषित करो। दूसरा है कि जो लीडर्स है, जो अगुवा है, जो सेवक है, उनके लिए इस तरह की प्रार्थना करने का एक परंपरा जो है वो चलती आ रही है। तो पुरानी वाचा से लेकर नई वाचा तक हम लोग देखते हैं कि ये काम जो है वो होता रहा है। तो मूसा जो है उसने अपना जो चुनिंदा व्यक्ति था, जिसको उसने बुद्धि, अधिकार सब सौंप कर एक नए अगुवा के रूप में प्रस्तुत करता है परमेश्वर के लोगों के सामने। तो ड्यूट्रोनॉमी की किताब खोलते हैं, उसका 34वां अध्याय देखते हैं, उसका 9वां वचन। और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो है, तो भी हमारे अधर्म और पाप
को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। Deuteronomy chapter 34 verse 9. कौन सी पुस्तक सर? ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 34 वर्स 9. ड्यूट्रोनॉमी गिनती के बाद आता है. Now Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom, for Moses had laid his hands on him. So the children of Israel heeded him and did as the Lord had commanded Moses. और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। Amen. Amen. तो ये है एक ब्लेसिंग जो हम लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर की ओर से मिला हुआ, और एक अगवा होने के नाते या अगवा होने के लिए नियुक्त किया गया, और फिर लोग जो है उसकी सुनते गए। और हम लोग देखते हैं कि यहोशुआ के जरिए ये सब लोग जो परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा करके कहा था कि मैं तुम्हें एक राष्ट्र दूंगा, एक देश मैं तुम्हें दूंगा, उस देश में वो ले गए। तो थोड़ा सा पीछे आते हैं, नंबर्स की किताब खोलते हैं, गिनती की किताब, उसका 27वां अध्याय और उसका 15वां वचन देखते हैं। मूसा ने यहोवा से कहा, 27वां अध्याय 15वां वचन। मूसा ने यहोवा से कहा, Then Moses spoke to the Lord, saying, Yes, read 16 and यहोवा Let the Lord यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे। Amen. let the Lord, the God of the spirit of all flesh, set a man over the congregation. ओके, तो एक काम करते हैं, 23 तक पढ़ लीजिएगा, 15 से लेकर 23 तक पढ़ लीजिएगा, फिर एक बार शुरू करते हैं 15 to 23। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे, जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तो नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको एलीआजर याजक के और सारे मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे, और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उसकी माना करें, और वह एलीआजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और एलीआजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करें, और वह इस्राएलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करें, और उसी के कहने से लौट भी आया करें। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलीआजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। Then Moses spoke to the Lord, saying, Let the Lord, the God of the spirit of all flesh, set a man over the congregation, whom set him before Eleazar the priest, and before all the congregation, and
inaugurate him in their sight. And you shall give some of your authority to him, and all the congregation of the children of Israel may be obedient. He shall stand before Eleazar the priest, who shall inquire before the Lord for him by the judgment of the Urim. At his word they shall go out, and at his word they shall come in. He and all the children of Israel with him, all the congregation. So Moses did as the Lord commanded him. He took Joshua and set before Eleazar the priest and before all the congregation. And he laid his hands on him and inaugurated him just as the Lord commanded by the hand of Moses. Amen. Amen. We'll read 2 more verses today and then we will stop for today. Yeah, let's read Joshua. Joshua chapter 1, verses 16 and 17. यहोशुआ की किताब पहला अध्याय 16 और 17 वचन. तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वह हम करेंगे, और जहाँ कहीं तू हमें भेजे वहाँ हम जाएंगे। जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरी भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था वैसा ही तेरे संग भी रहे। So they answered Joshua, saying, all that you command us we will do, and wherever you send us we will go. Just as we heeded Moses in all things, so we will heed you. Only the Lord your God be with you as he was with Moses. Amen. 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 थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर एक बार नंबर्स की किताब की ओर जाएंगे और उसका 8वां अध्याय का 10वां वचन पढ़ लेंगे। तब तू लेवियों को यहोवा के आगे समीप ले आना और इस्राएली अपने अपने हाथ उन पर रखें। So you shall bring the Levites before the Lord, and the children of Israel shall lay their hands on the Levites. Amen. Amen. आखिरी वचन पढ़ लेते हैं आज का 27-23, नंबर्स 27-23। कौन सा किताब सर? नंबर्स जहां पर है अभी वही का चैप्टर 27 वर्स 23। उस पर हाथ रखें और उसको आज्ञा दी जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। And he laid his hands on him and inaugurated him just as the Lord commanded by the hand of Moses. Praise God. So what we see here is that when it comes to जब कोई सेवक को नियुक्त करना होता है तो उस सेवक के सर पे हाथ रखकर उसे परमेश्वर की सेवकाई के लिए नियुक्त किया जाता है, ताकि परमेश्वर के जो गुण है वो गुण कम से कम उसकी परछाई उस व्यक्ति में नजर आए, क्योंकि वो एक अधिकार ग्रहण कर रहा है और उस अधिकार के पद को जब वो ग्रहण कर रहा है तो वो ऐसे ही ना ग्रहण करे, लेकिन परमेश्वर का जो अंश है, परमेश्वर का जो आत्मा है, उस आत्मा के माध्यम से उसे ज्ञान, बुद्धि और बाकी की जो चीजें लोगों का एक अगुवा बनने के लिए जरूरी है सब दी जाए। तो ये परमेश्वर की योजना है। तो कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि और क्या विषय है जो जिसको हाथ रखकर किसी व्यक्ति के ऊपर और
क्या क्या किया जा सकता है, अदर थिंग्स what and how we can impart or bless or do other things through this ministry of laying on of hands. तो फिर भी मैं अभी आपको एनकरेज करूंगा कि अगर आपने अभी तक वो वीडियो मेरा देखा नहीं है, इब्रानी की किताब का 6 अध्याय के पहले 2 वचनों के बारे में जो मैंने अभी हम लोगों ने पढ़े थे, तो उसका अगर समय मिलता है तो देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 एक्चुअली उसमें सब्जेक्ट्स है, सबको मैंने कवर करने की कोशिश की है। बट एनीवेज, थैंक गॉड एंड प्रेज गॉड आज के सुंदर समय के लिए। और सुनीता सिस्टर हमारे बीच में है, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो